हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय लास्ट वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे दैट इज वेरी इजी एंड आई थिंक यू आर गोइंग टू एंजॉय फॉर श्योर। इसमें मैं आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चंस, लंबे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो एंड दिस विल आल्सो इम्प्रूव योर मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल स्ट्रेंथ, आई वुड से. And this will also be important for any competition exam if you are planning and preparing for any competition exams. So let's see and watch this chapter, that is percentage. So before going into this concept, मैं आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए what should you do. You have to just learn these fractions into percentage. That means you have to learn like what is 1? 1 is 100%. What is 1 upon 2? 1 upon 2 is nothing but 50%, right? What is 1 upon 3? Is 33.3%. 1 upon 4 is 25%. If I say 1 upon 5, that is 20%, and so on. So you have to learn till 1 by 25. अगर आप ये याद कर ले तो trust me, बहुत सारे questions ऐसे हैं जो आप बिना कुछ सोचे समझे कर सकते हो. We will see what kind of questions are those, and this will also, you can say, improve the time. Like you are going to the questions which you took I think 10 seconds to solve using this. If you learn these, you may do it in just, I would say, 0.5 seconds or 1 second maximum. Yeah, so let's see. And before going into the concept, I would request you to learn the ratio from 1 upon 1 to 1 upon 25 in the form of a percentage. सो दोस्तों, आप लोग, आशा करता हूँ कि वो सारे फ्रैक्शंस याद कर लोगे. नाउ कमिंग टू द परसेंटेज. सो बिफोर गोइंग इनटू द क्वेश्चंस, आई वुड जस्ट टेल यू ब्रीफ अबाउट परसेंट, व्हाट इट मींस. सो इट सेज परसेंट, राइट? पर सेंट. सेंट इज नथिंग बट 100. सो व्हेनेवर वी टॉक पर, दैट मीन्स पर मीन्स डिवीजन, डिवाइड बाय 100. That is 5. Suppose we talk 5%. 5%. That means we can also represent this as 5%. So this is a symbol of percentage. So that means 5 divided by 100. So that is the meaning of the percentage. Percent, per 100. Yeah. So if you have learned these fractions, तो अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं like what will be like 4% off, if you have to find 4% off is nothing but multiplication of 250. तो what you are going to do is, तो अगर आपको 4% पता है कि 4% was nothing but 1 upon 25, your calculation become very easy. So it will be like 10. So answer will be 10. या फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको 4 into multiplication में. I think you will take some more seconds, but the easy way of doing these questions are like 4% is nothing but 1 upon 25, जैसे कि आपने याद किया है, and 250 by 25 is nothing but 10. You already know it, right? So if I take another example, if I tell you you have to find 9.09% of suppose 110. So what you are going to do is you are going to multiply 9.09 into 110 upon 100. But if you know the fraction, तो आपको पता है कि 9.09 is nothing but 1 upon 11. 1 upon 11 of 110 is nothing but 10. करेक्ट? तो ये आपके लिए बहुत इजी बन गया अगर आपको परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन याद है. तो ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो. सपोज इफ आई टेक if I say you like 1 or 1.11% of maybe 90, right? तो आपको पता है. और I would say 180, 1.11% of 180. तो अगर आपको सॉल्व करना है तो मतलब कैसे, बहुत जो आप नॉर्मल मेथड लेते हो तो वो क्या लेते हो 11.11 upon 100
दिस इज परसेंटेज इनटू ऑफ 180, राइट? आप ऐसे करोगे, लेकिन इट विल बिकम लेंथी। आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे, 0 0 गया, देन 2 से आप काटोगे। द इजी वे ऑफ डूइंग दिस, अगर आपको याद है कि 11.11 इज नथिंग बट 1/9, 1/9 of is multiplication 180, this will give you 20, so 20 will be the answer. 11.11 percentage of 180 is nothing but 20. It's very simple. Hope you are getting the concept. तो I would request you कि जितने भी आगे मैं क्वेश्चन बताऊंगा ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं वैल्यू में से होंगे जो आपने पिछली याद करी है, और आपको बहुत ही कम समय लगेगा अगर आपने वो वैल्यूज याद कर लिया। सो लेट्स सी मोर वन नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस। सो दोस्तों, जैसे कि आपको मार्क्स मिलते हैं पेपर में, राइट? तो आप बोलते हो कि मेरे 75% आए। व्हाट डू यू मीन बाय 75%? 75 आउट ऑफ 100 आपके मींस आउट ऑफ 100 दैट मींस आपके 75 नंबर आए, करेक्ट? हो सकता है कि आपके जो मार्क्स कैलकुलेट हुए हों वो 600 टोटल मार्क्स आर 600 सपोज, राइट? तो 75% ऑफ व्हाट? ऑफ टोटल मार्क्स आप ऐसे करते हो, करेक्ट? यू कैन जस्ट सॉल्व दिस, इट्स वेरी इजी। और यू कैन डू वन थिंग, आपको पता है 75% कितना होता है? अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा। इट्स नथिंग बट 75% इज नथिंग बट 3/4, 3/4 ऑफ 600, राइट? या आप कैलकुलेट कर सकते हो 150, दिस मींस 450। तो आपके जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 450। ये आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी बना देगा। सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस। सो दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया है। अभी पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो बेसिक क्वेश्चन सेज द पॉपुलेशन ऑफ एनी टाउन हैज इंक्रीज फ्रॉम 60,000 टू 65,000, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। अगर किसी टाउन की पॉपुलेशन पहले 60,000 थी, अब 65,000 हो गई है, इसका मतलब कितना इजाफा हुआ है, यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमेशा जब भी आपको डिफरेंस मतलब कुछ इंक्रीज हो रहा हो या कुछ डिक्रीज हो रहा हो, तो पहले दोनों का डिफरेंस फाइंड करना होता है। डिफरेंस फाइंड क्या करना होता है, कैसे होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, राइट? होल अपॉन ऑलवेज इनिशियल वैल्यू के आप से डिवाइड कर दोगे, इनिशियल वैल्यू से। हमेशा आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि आप फाइनल से डिवाइड करते हो या इनिशियल से। हमेशा आप इनिशियल से ही डिवाइड करोगे अगर आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चाहिए हो किसी। तो जो आपकी मतलब पहले जो जिसके रिलेटिव में होता है वो वैल्यू रखते हो, दैट मींस इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो दिस विल बी द परसेंटेज कि कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो फाइनल वैल्यू इज नथिंग बट 6500 माइनस 60,000, राइट? होल अपॉन 60,000, क्योंकि इनिशियल कितनी थी? 60,000 से 65,000 हो रही है, एंड इंटू 100। सो ये आ जाएगा 5,000 बाई 60,000 इंटू 100। 0 0 जितने भी हो काट दो आप। ये आ गया 50। इट्स 25 बाई 3, करेक्ट? 25 बाई 3 करोगे तो आ जाएगा 8.33। सो दिस विल बी द आंसर। या तो दैट मीन्स देयर इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 8.33%। देखते हैं एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन। दोस्तों, जब कभी आप लोग शॉपिंग करने जाते होगे तो आपको कहीं ना कहीं ऑफर दिखता होगा, लाइक शॉप वाले आपको ऑफर देते होंगे 50% प्लस 20% ऑफ, राइट? सो इसका मतलब ये नहीं कि दे आर गिविंग यू 70%, नो, दिस इज नॉट इक्वल टू 70% ऑफ, राइट? सो व्हाट इट इज लाइक, इट विल लाई समवेयर बिटवीन 50% से ज्यादा होगा ऑफकोर्स, बट 70% से कम होगा, या फिर ये बोल सकते हैं 50% प्लस 10% या कुछ भी होगा। तो देखते हैं कि वो हम कैसे निकालते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा।
पहले हम एक बार लॉन्ग ट्रिक से देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। तो अगर आपको सपोज 100 की आपकी चीज थी 100 रुपीज की, उसमें आपको 50% ऑफ दे रहे हैं, इसका मतलब 50% ऑफ का मतलब हो गया वो आपको 50 रुपीज की पड़ेगी, करेक्ट। अब 50 रुपीज में से 20% ऑफ दे रहे हैं, 20% ऑफ 50 रुपीज निकाल दोगे आप, यानी 10 और ऑफ दे रहे हैं, 50 रुपीज की पड़ी, 50 में से 10 और ऑफ दे रहे हैं, दैट मीन्स आपको पड़ी वो 40 रुपीज की फॉर यू। 50 माइनस 10 दैट मीन्स 40 रुपीज। जो आपको चीज पड़ी वो पड़ी 40 रुपीज की। तो अगर आप कैलकुलेशन करने पे आओगे तो पहले आप 50% निकालोगे जो वैल्यू आपको दिया गया है, राइट। देन जो भी आंसर आएगा उसका 20% निकालोगे, देन उसको माइनस करोगे, करेक्ट। बट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पर आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट हो, दिस वी कॉल्ड एज सक्सेसिव। व्हाट इज सक्सेसिव? सक्सेसिव इज नथिंग बट कंटिन्यूएशन में है कि 50% प्लस 20%। दे आर नॉट सेइंग इट 70%, दे आर सेइंग 50% प्लस 20%। दैट मीन्स पहले 50% डिस्काउंट देंगे, जितनी वैल्यू आएगी, जितना उसका प्राइस आएगा, उसमें आपको 20% और डिस्काउंट मिलेगा। तो इसको निकालने के लिए द बेस्ट थिंग इज, द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक आई वुड से, शॉर्टकट और शॉर्ट ट्रिक विल बी x प्लस y प्लस xy by 100. What is x here? X is nothing but पहला वाला परसेंटेज, y is nothing but सेकंड वाला परसेंटेज, राइट। तो आप इसमें वैल्यू रख दोगे, आ जाएगा आपका आंसर कि कितना परसेंट आपको फाइनल डिस्काउंट मिल रहा है। तो इट्स 50 प्लस 20 प्लस 50 to 20,000, राइट, 100, दिस इज 10। एक चीज आपको याद रखनी है कि जब हम बात करते हैं डिस्काउंट की, राइट, सो फॉर्मूला इज दिस। अगर हम बात करें कि आपको और देने पड़ेंगे, 50 और देना पड़ेगा, देन 20 और देना पड़ेगा, तो भी सेम फॉर्मूला लगेगा। अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट का मतलब हो जाता है माइनस। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो एक्स और वाई की वैल्यू रखोगे वो माइनस में रखोगे, राइट। तो एक्स और वाई की वैल्यू माइनस में रखोगे, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस है, दैट मीन्स ये हो गया -50 -20, दिस मीन्स -70 एंड प्लस 10, जो आपकी वैल्यू आई कितना ही -60। -60 है, इसका मतलब क्या है, ये डिस्काउंट है, दिस इज डिस्काउंट माइनस, सो -60%। तो अगर आपको पता लग जाएगा, आपको केवल ये सॉल्व करना है, आपको पता लग जाएगा कि आपको 60% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर हम एक और इसी पैटर्न का क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ आई से यू दे आर ऑफरिंग द डिस्काउंट ऑफ 50% एंड प्लस 10%, 50 प्लस 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे आपको डिस्काउंट ऑफर्स बहुत मिलेंगे। तो डोंट फील चीटेड, और आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक्चुअली वो कितना डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। तो 50% का डिस्काउंट का मतलब हो गया, आप इसमें वैल्यू रख दोगे, -50 -10 माइनस प्लस 500 अपॉन 100, ये हुआ 5, दिस विल बी 60 प्लस 5, that means -55. They are offering you discount of 55%. तो अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, दो शॉप पे गए आप, शॉप ए, तो अगर मैं ऐसे पूछूं आपको शॉप ए और शॉप बी, शॉप ए आपको दे रहा है डिस्काउंट ऑफ 59% एंड शॉप बी आपको डिस्काउंट दे रहा है 50% प्लस 10% का। तो आप किस शॉप से, चीज बिल्कुल आइडेंटिकल है, चीज सेम है दोनों शॉप में, तो आप किस शॉप से शॉपिंग करोगे, जस्ट ट्राई थिंग एंड जस्ट लेट मी नो ओवर माई ईमेल आईडी, दैट इज numberacharya@gmail.com। सो इट इज सिंपल, आप कैलकुलेट कर लोगे और जो भी कम होगा बेसिकली उस शॉप पे आप जाओगे, राइट। सो जस्ट लेट मी नो। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जिसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। मिस्टर एक्स है जो अगर स्पीड कुछ स्पीड से जा रहा है, एस स्पीड से जा रहा है, एंड
तो वो टी टाइम में पहुंचेगा। और टाइम सेइंग इज अगर वो एस स्पीड से जा रहा है तो वो टी टाइम यानी 20 घंटे या 14 घंटे 10 घंटे 10 आवर्स कुछ ऐसा पहुंच रहा है। नाउ इफ ही रिड्यूस द स्पीड बाय 20%, अगर उसकी स्पीड -20% हो जाए, यानी पहले अगर 100 थी तो अब वो 80 हो जाए, राइट, तो वो -20% ऑफ एस हो जाए, तो उसको कितना टाइम ज्यादा लगेगा। यू हैव टू फाइंड एंड टेल मी कितना टाइम उसको ज्यादा लगेगा, हाउ मच मोर टाइम ही विल टेक टू रीच फ्रॉम ए टू बी, अगर वो उसकी स्पीड जो है वो 20% कम हो जाती है, जैसा कि वो चल सकता था उससे ज्यादा कम हो जाती है, राइट। सो टू फाइंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पर बिकॉज आपको पता है कि डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जो पहले उसकी स्पीड थी और जो नई स्पीड है, अगर नई स्पीड को S1 और टाइम को T1 मान ले तो वो दोनों बराबर होगी, करेक्ट। तो पहले की स्पीड थी S इंटू टी, यहां पर S1 कितना है, S1 इज नथिंग बट 20%, 20% से कम हो गई, यानी उसकी नई स्पीड हो गई 80% ऑफ S। तो उसका टाइम, अगर टी टाइम का आपको परसेंटेज फाइंड करना है, टाइम का परसेंटेज से x परसेंटेज है ऑफ x पहले वाले टाइम के, s t कैंसिल s t कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 80 इज इक्वल टू x। सॉल्व करोगे आप, ये 1000 बाई 8, 1000 बाई 3 आ जाएगा 125, राइट। सो x की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स 125%, दैट मी 125, दैट मीन्स इट्स 25% एक्स्ट्रा। तो इसको अपनी जो इसका जो टाइम होगा वो 25% ज्यादा लगेगा। सो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो दैट शॉर्ट ट्रिक इज कि आपको जो भी अगर दो वैल्यूज हैं जिसमें कि जो आपस में मल्टीप्लिकेशन होकर सॉल्व होती है, राइट, लाइक इसमें एस इनटू टी होता है, वेयर डी इज कांस्टेंट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है इसमें आपका एक चीज कम हो रही है, उसकी वजह से दूसरी चीज इंक्रीज होगी, तो आपको फाइंड करना है कि दूसरी चीज कितने परसेंटेज से इंक्रीज होगी। इन दैट क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आपको क्या करना है, जो भी डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है ऑलरेडी गिवन है, उसको आप ऊपर रखो, दैट मीन्स 20% ऊपर आएगा, माइनस में है तो नीचे क्या आएगा 100 माइनस 20, इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 20 बाई 80, दिस इज नथिंग बट 1/4, 1/4 इज नथिंग बट 25%। सो इसको सॉल्व करने के लिए मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि अगर एक चीज वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी इंक्रीज कितने से होगी, ये फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा, जो आपको दिया गया है कि कम हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे, अपॉन 100 माइनस सेम वैल्यू, 100 माइनस सेम वैल्यू, सॉल्व करोगे जो आंसर आएगा, इसका मतलब जो दूसरी आपकी टर्म है, दूसरा टर्म है, उसको आपको इस परसेंटेज से इंक्रीज करना होगा। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस, देन वी कैन गो इनटू नेक्स्ट स्टेप। नाउ इट्स द टाइम फॉर सम होमवर्क। So दोस्तों we have 5 questions for the homework. Question first says find 16.66% of 36. Question 2 says find 33.32% of 27. Question 3 says Ram's salary got increased from 630 to 700 rupees. Find increase percentage. Question 4 says Mr. X जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं आपको 51% का, Mr. Y डिस्काउंट दे रहे हैं आपको 40 + 20% का. Who is offering you that is more discount, right? क्वेश्चन 5 सेज एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपकी जो स्पीड है वो 25% इंक्रीज हो गई है, देन हाउ मच लेस टाइम ऑफ परसेंटेज यू विल टेक टू रीच द सेम डेस्टिनेशन. You can just copy these questions and do it and forward send me your answers at numberacharya@gmail.com. Now it's the time for some puzzle and fun facts. Let's see to that. दोस्तों आज का जो फन फैक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है.
तो आज का फन फैक्ट क्या है कि अगर आपको ये पेंसिल दिख रही होगी इन अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आपको थोड़ी सी बेंड दिख रही होगी, राइट, और थोड़ी सी थिक दिख रही होगी। ऊपर से आप देखोगे पेंसिल सेम साइज की है, स्ट्रेट है, लेकिन अगर आप जैसे ही ग्लास में डालोगे या शायद आपको थोड़ी सी बेंड दिख रही होगी और इसकी थिकनेस भी थोड़ी बढ़ गई होगी, राइट। सो द रीजन फॉर दिस इज, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो इट्स रीजन इज रिफ्रैक्शन। सो जब भी आपकी जो लाइट होती है तो किसी प्लेन से जैसी किसी प्लेन पे पड़ती है और वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। यू कैन लर्न मोर अबाउट this phenomena in your physics book, right? And or you can just watch my channel, keep watching my channel. I am going to tell you more about this process. So for now you can just think, take, जब भी आप ग्लास ऑफ वाटर या कांच से आप कोई चीज देखते हो तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। लाइट जो बेसिकली जो लाइट पड़ रही है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, राइट। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और जैसे आप मिरर में इमेज देखते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो जो लाइट आपके सामने वापस टकरा के वापस आती है तो दैट इज रिफ्लेक्शन। बट इन दिस केस द प्रोसेस इज रिफ्रैक्शन। लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाती है, इसलिए आपको जो ऑब्जेक्ट है, लाइक इन दिस केस पेंसिल, वो आपको थोड़ी सी बेंड दिखती है, जैसे ही मैंने ग्लास ऑफ वाटर के अंदर पेंसिल को इंसर्ट किया। या सो लेट्स सी पजल नाउ। सो दोस्तों अब बारी है एक पजल की। सो लेट्स सी व्हाट इज टुडेज पजल। सो दोस्तों आज का पजल जो है वो ये है कि मिस्टर एक्स है जो कि कुछ फ्लावर लेके 3 टेम्पल पे जा रहे हैं। टेम्पल नंबर 1, टेम्पल नंबर 2 एंड टेम्पल नंबर 3, राइट। सो मिस्टर एक्स है, टेम्पल के पहले, हर टेम्पल के पहले एक पॉन्ड है, तो ये कुछ फ्लावर्स लेके जा रहे हैं, राइट। जैसे ही ये फ्लावर इस पॉन्ड में डालते हैं, सबसे पहले फ्लावर को धुलेंगे तो वो जो फ्लावर होते हैं वो डबल हो जाते हैं। जब डबल हो जाएंगे उसमें से कुछ फ्लावर ये इस पे चढ़ा देंगे, इस टेम्पल पे, बाकी बचेंगे वो इस पे लेके जाएंगे थर्ड पॉन्ड, सेकंड पॉन्ड पे, वो उस पे धुलेंगे। देन कुछ फ्लावर, सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स, जिस अगर इसमें 20 फ्लावर्स चढ़ाए थे तो यहाँ भी 20 फ्लावर्स चढ़ाएंगे, और जितने बचेंगे उसको पॉन्ड में डालेंगे। देन वो फिर से डबल हो जाएंगे, और जितने टेम्पल्स हैं सेम फ्लावर्स, मींस हर एक टेम्पल पे सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स वो चढ़ाएंगे। नाउ यू हैव टू टेल मी, द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स, मिनिमम फ्लावर्स ही विल टेक, ये यहाँ पे ले जाएंगे सबसे पहले पॉइंट में, ताकि जो फाइनल टेम्पल के बाद इनके पास जो नंबर फ्लावर्स बचे वो बचे 0। इनके पास 0 फ्लावर बचे। आपको बताना है कि कितने मिनिमम फ्लावर्स इनको ले जाने पड़ेंगे। होप द क्वेश्चन इज क्लियर, होप टुडेज कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो क्लियर। सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आफ्टर 2 days. You can like, share and subscribe this channel for more tricks, more fun and more learning, I would say. So keep learning, keep growing. See you in the next chapter. Bye bye.